Okay, so let's go ahead with the mensurations of plane figures, especially triangle and quadrilateral. So three-sided figure and four-sided figure. What we are going to do is finding out the perimeters and areas of this figure, right? So the volumes part we will be taking in the next class, but in this class we will be taking perimeters and areas. Now we know the meaning of perimeter. Perimeter is nothing but the boundary. So the length of the boundary is known as the perimeter. So let's say we have a triangle whose this is the vertex ABC. As we know, if this is a vertex A, the length which is opposite to the vertex A, small b and small c. So perimeter of this figure is nothing but A plus B plus C. This is known as the perimeter of the triangle. There is something known as a semi-perimeter which is given as A plus B plus C upon 2. Semi का मतलब आधा होता है, आधा of the perimeter is given as S. Now we try to find out the area of the triangles. Now the simplest, most common formula of the area of triangle is half base into altitude. Achha, okay. So the area of the triangle is half base into height, right? Now when we say height, it is corresponding height, right? What do you mean by corresponding height? It means something like this. Let us say I drop a perpendicular here. मान लेते हैं मेरा h1 है, ठीक है? तो a को हाइट जो करस्पॉन्ड कर रही है वो h1 कर रही है. इसी तरीके से मान लेते हैं मैंने हाइट बना दी है, मान लेते हैं ये है h2, तो b को जो करस्पॉन्ड कर रही है वो h2 है. ऐसे ही मान लो मैंने तीसरी हाइट बना दी तो ये बनेगी h3. समझ में आ रहा है? अब ये सारे जो एरियाज बनेंगे वो इस तरीके से हम बना सकते हैं. हाफ इंटू एरिया इज हाफ इंटू a इंटू h1. It is same as half into b into h2, which is same as half into c into h3. You understand this? Right, because that is the meaning of corresponding height, which also means, for example, if I write h1 can be taken as 2 capital A divided by A. लिख सकता हूं मैं. h2 can be taken as 2 capital A divided by B, and h3 can be taken as 2A divided by C. Now if I want to find out the ratio of the three heights, it would be same as 2A upon A is to 2A upon B is to same as 2A upon C. So 2A gets cancelled. I get 1 by A is to 1 by B is to 1 by C is given as h1 is to h2 is to h3. ठीक है? So in another words, the ratio of the altitudes in a triangle is always in the inverse ratio of their sides. What it also means, if there is a triangle, जो साइड सबसे लंबी है उसके ऊपर ड्रॉप होने वाला एल्टीट्यूड सबसे छोटा होगा, जो साइड सबसे छोटी है उस पर ड्रॉप होने वाला एल्टीट्यूड सबसे बड़ा होगा. इसका ये मतलब है रेशियो का. समझ में आ रहा है? ये मतलब कैपिटल ए, कैपिटल ए एरिया है ना, इसको मैंने इक्वेट किया. पहले इसको इक्वेट किया ऐसे, फिर ए को इससे इक्वेट किया, फिर ए को इससे. तीनों एरिया है ना, इसलिए क्योंकि कॉमन चीज है वो कट जाएगी. आ रही बात समझ में? एक तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो सिंपलेस्ट पॉसिबल फॉर्मूला ये होता है. दूसरा इसमें जो फॉर्मूला होता है उसको हीरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं. हीरोन्स फॉर्मूला इज गिवन एज एरिया इज गिवन एज अंडर रूट ऑफ s into s minus a into s minus b into s minus c. This is the formula of area. We know the meaning of s is a plus b plus c upon 2. This is the second formula that we need in area of triangle. Clear है? यहाँ तक बात समझ में आती? Now all these areas are for scalene triangle, as in equilateral triangle can be called as a scalene triangle, but vice versa is not necessarily true, right? So how do we take further areas of triangle? Further area can be taken as a b c upon 4 capital R. You remember in the last class we did circumradius. Capital R is circumradius. Then area can be also taken as R into S. R is in radius. R is in radius. S is semi perimeter. जो हमने पिछली क्लास में किया था उसका फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं. ठीक है? दूसरा, मान लेते हैं मेरे पास ये ट्राइंगल है, ये A है, ये B है, ये C है. Obviously you know this A B C. The area can also be found out by taking half into BC into sine of angle A. Similarly, area can be taken as half of AB into sine of angle C. Similarly, half into AC into sine of angle B. समझ में आ रहा है? टेंजेंट नहीं, tan नहीं आएगा.
कुछ tan टून कुछ नहीं आएगा, साइन आएगा। इन दोनों की साइड मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ दिस एंगल, ये दोनों साइड मल्टीप्लाइड बाय दिस एंगल, ये दोनों साइड मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ दिस एंगल। जो मैंने पिछले अभी फिगर में कराया था उसमें दोनों में आर आर था, तो बस वो हाफ आर स्क्वायर हो गया और कोई फर्क नहीं था क्योंकि दोनों लेंथ बराबर है। आगे बात समझ में है? हाँ हाँ, सब बराबर है, या तो ये या तो ये या तो ये। हाफ इंटू टू साइड्स, जो भी दो साइड्स है, मल्टीप्लाइड बाय साइड ऑफ एंगल बिटवीन देम इज गिवन एज एरिया ऑफ अ। सर ये जो BC है हाफ इंटू BC इंटू साइन ऑफ A। ठीक है, क्या बेटा? ABC कुछ नहीं है, ये ABC तीनों का प्रोडक्ट होना चाहिए, डिवाइड बाय 4 टाइम्स सरकम रेडियस होना चाहिए। याद हमने सरकम रेडियस पढ़ा था, वही है, बस आर को नीचे ले आया, एक ऊपर ले गया, और कुछ नहीं। ठीक है, नाउ व्हाट एवर फॉर्मूला इज, दिस इज वैलिड फॉर ऑल पॉसिबल ट्रायंगल्स, बट वी आर गोइंग टू स्पेसिफिकली स्टडी अ इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड एन आल्सो आइसोसेलेस ट्रायंगल। हाँ जी, मैं बोलो। सर ये जो BC है ये BC साइड है या फिर B और C का प्रोडक्ट है, जो बीच में छोटा वाला BC लिखा हुआ है? ये हाँ जी, हाँ, हाँ जी। प्रोडक्ट है, B इंटू सी है। ये B छोटी वाली मतलब AC और AB की जो मतलब सामने है B और C, वो उसका प्रोडक्ट है? नहीं नहीं, ये हाफ, कैपिटल BC? नहीं, स्मॉल बी सी, हाफ इंटू दिस लेंथ ओके, इंटू दिस लेंथ। स्मॉल ए लिखा है ना, स्मॉल ए स्मॉल बी। ठीक है ठीक है स्मॉल ए मतलब लेंथ होती है ना। ठीक है ठीक ठीक है, है। क्लियर है यहाँ तक? देन वी ट्राई टू टेक इक्विलेटरल ट्रायंगल। हम एक बार इक्विलेटरल ट्रायंगल स्पेसिफिकली स्टडी कर लेते हैं। In an equilateral triangle, let us say this is A, this is B, this is C. If this is side A, this is also A, this is also, that is why it is known as an equilateral triangle. In an equilateral triangle, when you draw an altitude, right? So the altitude will bisect the opposite side. It will be 90 degrees. So this length will become A by 2. This length will also become A by 2. We triangle को भी bisect करेगा। एरिया जो बनेगा वो बनेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट? तो ये बनेगा हाफ इंटू ए इंटू एच। एच ये है, एच निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। कहना इसे ए स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ए बाई 2 का होल स्क्वायर, यही बनेगा। फ्रॉम हियर आई कैन से एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4, यही बनेगा। फ्रॉम हियर आई कैन से 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4, यही बनेगा। यहां से बनेगा 3a स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू एच स्क्वायर, यही बनेगा। कहना इसे h की वैल्यू बनेगी √3/2a। ये भी अपने आप में एक रिजल्ट है कि एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज गिवन एज √3/2a। ये याद होना चाहिए, अपने को बारी बारी निकालना ना पड़े। इक्विलेटरल ट्रायंगल हाइट, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल शुड ऑलवेज बी √3/2a, हमें याद होना चाहिए, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ h की वैल्यू बनेगी अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा a स्क्वायर बाय 4 रूट ऑफ, इसको ऐसे जनरली नहीं लिखते हम, इसको ऐसे लिखते हैं √3/4 a स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, हमें ये याद होना चाहिए। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये सिचुएशन है। फिर हम देखते हैं, हाँ हाँ कोई नहीं। मान लेते हैं हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, ये ए है, ये बी है। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा।
h की वैल्यू निकालेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से बनेगा b स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर विच इज 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, न्यूमरेटर में अंडर रूट बाई 2। एरिया बनेगा हाफ इंटू a इंटू अंडर रूट ऑफ 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो एरिया बनेगा a/4 अंडर रूट ऑफ 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसमें ध्यान रखना a जो है वो नॉन इक्वल साइड है, ये मेरा एरिया बनेगा। दिस इज द एरिया ऑफ अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, ये मेरा क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, इसके बाद आता है क्वाड्रिलेटरल्स। क्या 15-20 मिनट और लगेंगे, हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल। कल क्या है?